ICSE Mathematics Class 10th, Chapter 10 Reflection, Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 9, which states that use the graph paper for this equation. A, that is 1, 1, B, 5, 1, C, 4, 2, and D, 2, 2 are the vertices of a quadrilateral. Name the quadrilateral A, B, C, D. A, B, C, and D are reflected in the origin onto A dash, B dash, C dash, and D dash, respectively. Locate A dash, B dash, C dash, and D dash on the graph sheet and write their coordinates are DA, A dash, and D dash collinear. देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए D dash and D dash are collinear as they are lie in the single line and passing through the origin. Quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. First of all, this see A, that is 1 1. हमने प्लॉट किया क्या A पॉइंट को, that is 1 1 in the first quadrant, that is 5 1. B, that is also in first quadrant. C, 4 2, that is also in first quadrant. D, 2 2, that is also in first quadrant. If you want to find the length of AD, you see this is 1, perpendicular distance is 1, horizontal distance is 1, and it is a right angle triangle. Therefore 1 square plus 1 square का रूट लेंगे तो √2 आ जाएगा यहाँ पर. उसी तरह से BC निकालने के लिए यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, हॉरिजॉन्टल बेस जो है वो भी 1 है, और इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर द हाइपोटेनस विल बी आल्सो √2. सो दीज टू साइड्स आर इक्वल and these two sides are AB and DC are parallel because there is they are equidistant. When perpendicular distance is 1 unit. Therefore, these two lines are parallel. So, two lines are parallel and two lines are non-parallel, but they are equal. Therefore, it is a isosceles trapezium. Now, if these points, the reflection of these points or these vertices under the origin it is taken. You see the question number 9 में जो मेंशन किया हुआ है, name the quadrilateral and reflected in the origin onto A dash B dash. You see इसका रिफ्लेक्शन जो होगा अंडर ओरिजिन लिया जाएगा. सो A डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 -1. दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, एब्सिसा का भी ऑर्डिनेट का भी. -1 -1. D का देखिए -2 -2. उसी तरह से C डैश का देखिए -4 -2. B का देखिए -5 -1. अब हमारे को मालूम भी है वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में सभी दोनों x और y दोनों भी नेगेटिव होता है, क्योंकि इधर जाएंगे तो x नेगेटिव मिलेगा, y नीचे की तरफ मिलेगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है. देयरफॉर ऑल दीज पॉइंट्स आर, एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा. सो द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, and if you just join DA, you see the A dash and D dash are collinear. These points are in a straight lines. Means A dash, D dash. These are collinear points. यदि आपको ज़्यादा कंफर्म करना है, you can find the slope. You can find the slope of two points between the slope. Other 2 points means the slope of AD, slope of A dash A, slope of D dash A dash. So in all cases you will get
सेम स्लोप। मेरे को आशा है कि आपको मालूम होगा स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, और ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन्स में मिलेगा। दैट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और दूसरा तरीका है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line passing through this and just substitute the value। एनी 2 पॉइंट्स का आप ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड सब्स्टिट्यूट द अदर 2। you will find that these 2 points are satisfying the condition, and therefore these points are collinear points। Graphically it is proved, but mathematically or with calculation or numerical point of view से यदि आपको करना है तो find out the equation line passing through d dash a dash and substitute these values। First substitute 1 1 in place of x, write down 1, in place of y write down 1। that equation will satisfied। Again substitute 2 2, again that equation will be satisfied। Now proceed to the question number 10। Use a graph paper for this equation। Take 10 small division is equal to 1 unit on both the axes। P and Q have the coordinate 0 5 and -2 4। P is invariant when reflected in an axis। Name the axis। Find the image of Q on reflection in this axis found in first। थर्ड पॉइंट क्या है, 0 k और on the reflection in the origin is invariant। Write the value of k। Write the coordinate of the image of the Q obtained by reflecting it in the origin followed by the reflection in x-axis। Let us proceed। इसी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप 0 5 point P is given, that is 0 5, here 0 5 -2 and 4, -2 and 4 in the second quadrant, -2 and 4। So it is, this is 0 5 Q or P and Q is -2 and 4। So the reflection of Q through y axis, तो क्या होगा, इसका एब्सिसा चेंज हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा। सो Q डैश मिल गया आपको। P is invariant। P is invariant when reflected in y axis। जब हम P को रिफ्लेक्ट करेंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P थ्रू y axis, at that time this is the coordinate first of all। Here it is 0 5 means abscissa is 0 and abscissa is to be changed। when y axis पर हम लेते हैं रिफ्लेक्शन तो abscissa will be, the sign of abscissa will be changed। यहाँ पर 0 है तो 0 का साइन चेंज करने का मतलब ही नहीं है, तो इट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 0 5 will remain 0 5 while it is being reflected in y axis। So P is invariant when reflected in y axis। So it is fulfilled। Reflection of Q in y axis, that is in 1 is 2 4 is 2 4। अगर देखिए -2 4 Q है, -2 4 इसका रिफ्लेक्शन लिया जाएगा y एक्सेस में,
तो एब्सिसा का साइन क्या है, -2 है, it will become 2 here and 4 will remain as it is. OK and reflection in the origin is, OK on reflection in the origin is invariant. There is a point O, sorry, 0K, you can say 0K. 0 is the abscissa, K is some number, K is a constant number, you can say. So 0K and reflection in the origin is invariant, means the 0 and K on reflection in the origin will be -0 minus K, but due to invariant 0 is equal to -0, so therefore 0, K is equal to -K, K is equal to -K. हमने लिख दिया ना इसका, देखिए 0K है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ इन द ओरिजिन द साइन ऑफ बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट विल बी चेंज्ड, so it will become -0 and it will become -K. But due to invariant, while it is invariant, so 0 should be equal to -0. It means that 0, K is equal to -K. ये -K क्यों रखा है, बट ड्यू टू इनवेरिएंट होने के कारण K शुड बी इक्वल टू -K. सो ट्रांसपोज कीजिए 2K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0. So what will be the value of K here? The 0, 0. The coordinate of the image of Q reflected in the origin is, reflected in the origin is 2 minus 4. 2 minus 4. देखिए आप यहाँ पर Q का क्या कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 4 है. अगर इसका रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन लिया जाएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. ये -2 है तो 2 हो जाएगा, ये 4 है, इट विल बिकम -4. सो नाउ द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सेस, जैसे ही इसका हम रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स एक्सेस में तो इट विल बिकम 2, 4. देखिए यहाँ पर 2, 4 हो गया. ये वाई एक्सेस पर हो गया. यहाँ से हम लाएंगे इधर, इसको प्लॉट कर सकते हैं यदि आप. सो -2 विल बिकम 2. सो यहाँ से 2 लीजिए और यहाँ से 4. -2 का तो +2 हो जाएगा, 2 के बाद -4. 1, 2, 3, 4. So it will become 2, -4. जब इसी का हम एक्स एक्सेस में लेंगे रिफ्लेक्शन तो क्या हो जाएगा, इसका 2, 4 आ जाएगा. देखिए एक्स का तो रहेगा ही चेंज, वो वाई का चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम 2 and 4, 2, 4. So the coordinate of the image of Q reflected in the origin is 2, -4. Now the reflection in the x-axis is 2, 4. Now proceed to the question number 11. Use a graph paper for this question. Point A, 2, 3, B, 4, 5 and C, 7, 2 are the vertices of the triangle ABC. Write down the coordinate A dash, B dash, C dash. If the triangle A dash, B dash, C dash is the image of ABC when reflected in the origin, write down the coordinate of the A double dash, B double dash, C double dash. If the triangle A double dash, B double dash, C double dash is the image of the triangle A dash, B dash, C dash when reflected in the x-axis, mention the special name of the quadrilateral BC, C double dash, B double dash and find its area.
इसी देखिए आप यहाँ पर यूज ए ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन द पॉइंट ए बी सी आर गिवन दैट इज द ट्राइंगल वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. पॉइंट क्या है देखिए आप, पॉइंट ए है 2 3, बी है 4 5, सी है 7 2. रिफ्लेक्टेड इन ओरिजन, जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा ए का तो ए का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, हर एक दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा. बी का देखिए -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा. सी का देखिए -7 हो जाएगा, -2 हो जाएगा. अब रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सेस, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सेस, तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा एक्स एक्सेस में ए डैश का ए डबल डैश देखिए -2 तो वही रहेगा, -3 का 3 हो जाएगा. बी डैश का बी डबल डैश -4 तो एज इट इज, -5 का 5 हो जाएगा. क्योंकि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस मीन्स द साइन ऑफ ऑर्डिनेट विल बी चेंज, साइन ऑफ ऑर्डिनेट विल बी चेंज. सी डैश का सी डबल डैश हुआ -7 एज इट इज, -2 से 2 हो जाएगा. यही आपका आंसर है. अभी इसका देखिए ग्राफ, ए पॉइंट है 2 3, बी है 4 5, सी है 7 2. All these three vertices are in the first quadrant and all are positive. Means x abscissa and ordinates both are positives. लेकिन जैसे ही हम इसका लेते हैं रिफ्लेक्शन इन y एक्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, लेट मी सी, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. पहले हम इसका रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन लेंगे. तो ये देखिए इसका 2 3 था, यहाँ पर -2 और -3 हो जाएगा. दोनों का साइन चेंज होगा, एब्सिसा का भी ऑर्डिनेट का भी. बी का देखिए -4 -5, यहाँ पर क्या है बी का 4 और 5. दो इट इज नॉट ए ग्राफ पेपर बट आई हैव यूज्ड एक्स एक्सेस fully calculated, y axis also fully calculated. Accordingly I have plotted the points. So the coordinate of b will be -4 -5. देखिए यहाँ पर -4 है, this is the origin. So a dash b dash c dash after reflection through origin. अब क्या है इसके बाद c डबल डैश एक्स एक्सेस पर है. देखिए यहाँ पर लिखा है शुरू में रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सेस, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सेस. तो जब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे एक्स एक्सेस पर तो वाई ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या कहिए या ऑर्डिनेट इज सफिशिएंट. सो ऑर्डिनेट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली. देखिए -2 -3 हो गया. यहाँ पर बी डबल डैश का देखिए -4 + 5 हो जाएगा. सी डबल डैश हुआ -7 एज इट इज, -2 का 2 हो जाएगा रिफ्लेक्शन. अब हम देखते हैं बी सी. देखिए बी सी, ये पॉइंट बी सी डबल डैश, उसके बाद बी डबल डैश. देखिए डॉटेड लाइन से मैंने प्लॉट किया हुआ है. सो बी सी डबल डैश बी डबल डैश, ये फिगर क्या होगा देखिए जरा. ये लाइन पैरेलल लाइन है. ये लाइन बी डबल डैश इज पैरेलल टू सी डबल डैश. So therefore the C double dash B double dash is a trapezium whose parallel sides are
14 और 8 यूनिट्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर, नॉन पैरेलल साइड को मैंने वर्कआउट किया है। पैरेलल साइड कैसे वर्कआउट किया जाएगा? लेंथ देखिए यहाँ से ये 7 है तो वहाँ से काउंट कीजिए, है देखिए -7 है यहाँ पर, तो 7 यूनिट तो लेंथ ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर 7 ये, तो ये लेंथ हो गया 14, मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। 8 यहाँ पर देखिए -4 और 4 मीन्स न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 एंड 4 दैट विल बी टोटल 8, सो 4 और 8 यूनिट। अब नॉन पैरेलल साइड का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, 7 - 4 x2 - x1, 7 - 4 प्लस 2 - 5 का स्क्वायर किया, फिर ओवर स्क्वायर रूट ले लिया, एंड -7 देखिए ये -7 है, -7 -4 डिस्टेंस फार्मूला लागू किया मैंने यहाँ पर, प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया। इसका आंसर आएगा 3√2, इसका आंसर आएगा 3√2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखिए एरिया निकालने के लिए फार्मूला दे रहा हूँ मैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 14 एंड 8 आ गया। Sum of parallel side, that is capital M, that is M, capital M. Difference of parallel side 14 - 8, that is 6. Sum of non-parallel side means 3√2 plus 3√2, that is 6√2. So the area of trapezium is equal to area of trapezium of isosceles trapezium m/4, capital M/4. What is capital M? Capital M is the sum of the parallel side, that is 22. देखिए 22/4 लिखा हूँ मैं। रूट ये है सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, that is 6√2. जो सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हूँ मैं, 3√2 प्लस 3√2 दैट विल बी इक्वल टू 6√2. सो फार्मूला क्या इस्तेमाल किया हूँ, कैपिटल M/4 रूट ऑफ R² - M²। R² देखिए R² क्या निकला हमारा, R² हमारा क्या निकला है 6√2, 6√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 × 2 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ नॉन पैरेलल साइड, सॉरी डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड 6 आएगा, 14 - 8 दैट इज 6. सो 6 का स्क्वायर किया, देखिए डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड को मैंने स्मॉल m से दिखाया है, और सम ऑफ पैरेलल साइड को कैपिटल M से दिखाया है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड कैपिटल R से दिखाया है। तो आपको ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप 4 साइड्स आर गिवन। एक मेरा इनिशियल वीडियो में दिया हुआ है दिस फार्मूला, कैसे डिराइव किया हूँ वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ मैं। सो 22/4 रूट 36 × 2 - 36, सो 36 कॉमन लिया, 2 - 1 दैट इज 36, 36 का स्क्वायर रूट लोगे 6 आएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 11/2, 11/2 × 6 दैट इज इक्वल टू 6 को कैंसिल किया 2 से, 3 आ गया, 11 3 × 33 स्क्वायर यूनिट। जो सिंपल मेरा उद्देश्य ये था कि आप इस फार्मूला से परिचित हो जाएं, फुल्ली एक्वेंटेड हो जाएं, दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर। अदरवाइज देयर इज सिंपल फार्मूला हाउ टू वर्क आउट 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम ऑफ पैरेलल साइड कर लीजिए, 22 आया है, सम ऑफ पैरेलल साइड
1 by 2 मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 है, वो आ गया आपका 33 स्क्वायर यूनिट. वेरी सिंपल मेथड इज. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 12. यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस इक्वेशन. For this question, the point P, that is 2 minus 4, is reflected about the line x is equal to 0. To get the image Q, find the coordinate of Q. Second part, point Q is reflected about the line y. To get the image R, find the coordinate of R. The third part is name the figure PQR, find the area of the figure PQR. These are the four part of this question, question number 12. Let us proceed. देखिए पॉइंट P दिया हुआ है 2 minus 4, ये पॉइंट P है आपका. रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सेस. अब जैसे ही हम y एक्सेस पर रिफ्लेक्शन लेंगे तो एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा. 2 का है तो -2 हो जाएगा, -4 तो एज इट इज. सो दिस विल बी द Q. नाउ रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सेस. r इज इक्वल टू -2 4. क्यों? रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x एक्सेस. x एक्सेस है तो क्या हो जाएगा इसका? केवल ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. साइन ऑफ ऑर्डिनेट विल बी चेंज्ड. दैट इज -4 से 4 हो गया, -2 एज इट इज. नाउ द फिगर PQR, फिगर PQR, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. अब इसका फिगर देखते हैं, फिगर कैसा है. फिगर PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल PQR. ये देखिए आप, पॉइंट P दैट इज 2 minus 4, Q जो है रिफ्लेक्शन है तो -2 एज इट इज, -2 से -2 हो गया, -4 एज इट इज. अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा तो -2 का 2 रहेगा x एक्सेस पर. y ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज r. -2 4. सो जस्ट ज्वाइन कीजिए PQR. इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. So, very simple formula, area of PQR is equal to 1 by 2 into 4 into 8. How it is 4? यहाँ से देखिए, P से Q 2 यूनिट है इधर, ये 2 यूनिट और 2 यूनिट इधर, तो 4 यूनिट हो गया आपका. तो ये साइड जो है 4 हो गया. अब यहाँ से देखिए, ये 4 यूनिट ये है नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो 4 4 8. So 1 by 2 into 4 into 8, that is 16 square unit. ये इसका एरिया होगा. एरिया ऑफ PQR will be equal to 16 square unit. Let us proceed to the question number 13. Use a graph paper to answer the questions. Plot the point A and B, that is A is 4 6, B is 1 2. A dash is the image of A when reflected in the x-axis. B dash is the image of B when reflected in the line A dash. Give the geometrical name for the figure AB, A dash, B dash.
equation of line a dash is x is equal to 4. x is equal to 4. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा हुआ है. Equation of line a dash x is equal to 4 that is parallel to y axis. B dash is the image of B when reflected in the line a dash. Reflected in the line a dash, that is B dash is equal to 2 into 4 minus 1. 2 into 4 minus 1 comma 2. इसको सॉल्व कीजिए. 2 4 जा 8 minus 1 that is 7 2. So B dash will be equal to 7 2. Now let us see the figure. Here you see. This is point A, that is 4 6. This is point 1 2. ये आपका है. So 1 2 हो गया. और a dash, इसी देखिए a dash is a line. This line is parallel to y axis. This is y axis. और a dash is a line parallel to y axis and its equation is x is equal to 4. देखिए 1 2 3 4, x is equal to 4. The equation of the line a dash is equal to x is equal to 4. X is equal to 4. Equation of this line. अब B का 1 2 है. इसका जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ से लेना है. इसका B का है रिफ्लेक्शन थ्रू a डैश. रिफ्लेक्शन थ्रू a डैश. B डैश इज द इमेज ऑफ B इन द लाइन a डैश. सो B डैश का जो रिफ्लेक्शन है a डैश से है. लाइन ये है. तो x इज इक्वल टू 4 है. तो 2 इंटू 4 माइनस 1. माइनस 1 कहाँ से कर दिया हमने? ये 1 है. So 2 into 4 minus 1 comma and 2. सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 2. तो 7 2. बी डैश का कोऑर्डिनेट हो गया 7 2. ए डैश का देखिए यहाँ पर है ये 4 6 है. ये है 4 6 और ए डैश है आपका 4 minus 6 होना चाहिए. क्या है? A dash is the image of A when reflected in the x-axis. A dash is the image of A when reflected in x-axis. तो जब रिफ्लेक्शन किया जाएगा तो 4 6 minus 6 होना चाहिए यहाँ पर. You can say 4 comma minus 6. अब इसका हो गया 4 6. ये हो गया आपका 4 6. ये हो गया 1 2. इधर हो गया 7 2. अब इसको हमने ज्वाइन किया ए बी डैश और बी से ए डैश को. तो फिगर जो बना हमारा कौन सा? ए बी ए डैश बी डैश इज अ काइट. काइट का फिगर बन गया. ये इज ए काइट. सो जो ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी A dash B dash
is a kite. Now proceed to the question number 14. Use a graph paper for this question. A is 0, 3, B is 3 minus 2, and O is 0, 0 are the vertices of the triangle ABC. Plot the triangle on the graph paper, taking 2 cm is equal to 1 unit on both the axes. Plot D, the reflection of B in the y-axis, and write its coordinate. Give the geometrical name of the figure ABOD. Write the equation of the line of symmetry of the figure ABOD. Let us see. Question number 14. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप यहाँ पर A जो है 0,3 मीन्स 0,3 का मतलब यहाँ से हमने लिया यहाँ पर y एक्सेस के ऊपर। देखिए यहाँ से लेकर के हमने 2 सेंटीमीटर को 1, 2 एंड 3, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसको प्लॉट किया है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा, तो 0,3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर है -3, B है, देखिए इधर B जो है 3 minus 2, 3 minus 2 B, और इसका जो y एक्सेस पर हम लेंगे तो y एक्सेस पर लेंगे तो x का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, मतलब एब्सिस का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -3 minus 2। B का जो रिफ्लेक्शन लेंगे हम y एक्सेस पर तो क्या आएगा -3 minus 2, और 0, 0 O का ओरिजिन है, O से ओरिजिन जो 0, 0 है। इन पॉइंट को मिलाओ जरा, A से B को और A से D को और O को मिलाइए। सो ABOD इज अ फिगर ऑफ एरो हेड। ये एरो हेड का फिगर है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ABOD इज x इज इक्वल टू 0। ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये है y एक्सेस, तो y एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस। सो द लाइन ऑफ सिमेट्री इज y एक्सेस। Let us proceed to the question number 15. Use a graph paper to answer the following question. Take 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. Plot A 4, 4, B 4 minus 6, C 8, 0, the vertices of the triangle ABC. Reflect the ABC on the y-axis and name it as A dash, B dash, C dash. Write the coordinate of the image of A dash, B dash and C dash. Give the geometrical name for the figure A dash, A dash, C dash, B dash, B, C. Identify the line of symmetry of A dash, C dash, B dash, B, C. Let us proceed. क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये y डैश एक्सेस है, ये x एक्सेस है। हम ए पॉइंट को प्लॉट किया 4, 4, दैट इज A इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। B है 4 minus 6, दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।
और C है 80। अब इसका रिफ्लेक्शन हम लेंगे थ्रू वाई एक्सेस। ए का रिफ्लेक्शन लेंगे वाई एक्सेस पर, तो एक्स का मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा द साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम -4 -4, 4 ए डैश का। उसी तरह से सी डैश का, सी का देखिए यहाँ पर है 80, सी का कोऑर्डिनेट है 80। इसका जब रिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सेस पर, तो एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा केवल, दैट विल सी डैश दैट इज -80। बी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सेस पर जब लेंगे तो क्या आएगा, देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 - 6, सो बी डैश का हो जाएगा 4 ए का देखिए आप पहले 4, बी का है 4 - 6, सी का है 80। इसका रिफ्लेक्शन ए बी सी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सेस पर लिया गया है, -4 आ जाएगा इसका, -4 इसका कोऑर्डिनेट होगा -80, इसका कोऑर्डिनेट होगा -4 - 6। यहाँ पर देखिए फिर डिटेल में मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट्स, ए 4, बी 4 - 6, सी 80। ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वर्टिसेस का, ट्रायंगल का, रिफ्लेक्ट ऑन वाई एक्सेस पर ए डैश का क्या हो जाएगा -4 देखिए -4 बी डैश का देखिए, बी से 4 - 6 था, यहाँ पर भी -4 6 हो जाएगा, -4 - 6। सी डैश दैट इज -80 ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सेस, ज्योमेट्रिकल नेम फॉर ए डैश, ए डैश, सी डैश, बी डैश, बी सी। ये the name of that geometrical name will be hexagon. The line of symmetry of A dash, A dash, C dash, B dash, B C is the y-axis. Y-axis is the line of symmetry. Now proceed to the question number 16. Question number 16 states that using the graph paper and taking 1 centimeter is equal to 1 unit along both x-axis and y-axis, plot the point A -4 and B 2, reflect A and B in the origin to get the images A dash and B dash respectively. Write down the coordinate of A dash, B dash. Give the geometrical name of the figure A, B, A dash, B dash. Draw and name the line of symmetry. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पॉइंट्स दिया हुआ है। A that is -4, B दिया हुआ है 2, तो ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से हमने वर्कआउट किया है तो 2√10 आएगा। रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, जैसे ही रिफ्लेक्ट किया जाएगा
दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज होगा। अब यहाँ पर -4 था, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 था, ये -4 हो गया। उसी तरह से बी का देखिए 2 था, यहाँ पर -2 आ गया बी डैश। अब इसका साइड निकालना है बी डैश ए डैश का। सो बी ए डैश 2 minus 4 whole square plus 2 plus 4 whole square, that will be equal to 2 root 10. फोर प्लस 2 36 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। और यहाँ पर है 2 minus 4 होल स्क्वायर। देखिए बी ए डैश will be equal to root of 2 minus 4 whole square plus 2 plus 4 whole square, that will be equal to 2 root 10. Here also it will be 2 root 10. The geometrical name to the figure A dash B dash is rhombus. Draw the line of symmetry, that is diagonal of the rhombus. Diagonal of the rhombus will be the line of symmetry. देखिए ए जो है -4 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी जो है 2 बी डैश इसका ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन देखिए -2 इसका रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजिन -4 है, यहाँ पर हो गया 4 -4। अब डायगोनल बी डैश को वर्कआउट किया मैंने, 2 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 + 2 डिस्टेंस फार्मूला लागू किया, 2 - 2 करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। सो डिस्टेंस फार्मूला है 2 + 2 का होल स्क्वायर किया +2 + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 रूट 2। डायगोनल ए डैश निकाला मैंने, 4 - 4 का होल स्क्वायर 4 + 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 रूट 2। यहाँ पर डायगोनल देखिए ए डैश का लेंथ कितना आ गया, 8 रूट 2, और यहाँ पर डायगोनल बी डैश कितना आया, 4 रूट 2। So it is a rhombus A dash B dash is a rhombus, and line of symmetry is the diagonal of the rhombus. Any diagonal you can take, this diagonal or this diagonal. Both diagonal will be the line of symmetry.